तो इस वीडियो में मैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को कवर करने वाली हूँ। हेलो, आई एम डॉक्टर संगीता अडेला. आई एम ए साइकियाट्रिस्ट एट ह्यूमन हेल्थ केयर. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू डील विद इमोशनली डिफिकल्ट पीपल. इट वाज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक फॉर मी. इमोशनली डिफिकल्ट लोग कोई भी हो सकता है, anyone who is suffering from mental illness और जो सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हैं, जो इमोशनली डिसरेगुलेटेड है बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी. मैं इस वीडियो के थ्रू किसी को लेबल नहीं करना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू मेक योर सेल्फ अवेयर अबाउट दीज पर्सनैलिटीज़. एंड समटाइम्स हमारा जो मेंटल वेलबींग ख़राब हो जाता है उसको कैसे प्रोटेक्ट आप कर सकते हो. तो ये मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So firstly, I want to talk about borderline personality disorder. So आपने इसके बारे में सुना होगा, but आपको समझाने के लिए I want to quote from our textbook जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन MD साइकियाट्री करते टाइम पढ़ते हैं. So we mostly use DSM-5. I don't want to go that technical. I want you to understand कि ये क्या होते हैं. तो इस पर्सनैलिटी का जो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि इनको बहुत ही ज़्यादा अबंडनमेंट इश्यूज होते हैं. सेकेंडली, दे आर वेरी अनस्टेबल एंड दे आर हैविंग वेरी इंटेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसके अंदर या तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, या तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक गुड है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है. उनके दिमाग में ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग चलती है. देयर इज़ नो ग्रे लाइन. And the third thing is they have very unstable self-image. And fourth is they are very impulsive. Like impulsivity का मतलब है कि सोचे समझे वो बहुत सारे काम कर देते हैं. तो I am just giving you the example. I am just quoting you the example from our book. These behaviors, they can be spending a lot of money, and it also include unsafe sex, substance abuse, nasha karna, reckless driving and binge eating. So they are very impulsive. They are indulge in very impulsive behaviors. And the fifth thing is they are having recurrent suicidal behaviors and gestures and threats or self-mutilating behaviors. जैसे आपको बहुत सारे कट्स उनके हाथ में लगेंगे, या फिर झगड़ा होने पे वो बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा या सुसाइड कर लूँगी. सो इट्स वेरी कॉमन इन देम. एंड द सिक्स्थ इज अफेक्टिव इंस्टेबिलिटी. अफेक्टिव इंस्टेबिलिटी इसका मतलब उनकी मूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं. दे कैन फील द मूड स्विंग्स. यू कैन ऑल्सो सी दे आर very happy, they are very sad. And seventh is they are having chronic feeling of emptiness. And eighth is inappropriate and intense anger. You can see, मतलब जब गुस्सा आता है तो इतना ज़्यादा आ जाता है कि उसका कोई लिमिट नहीं है. फिर they can harm you, they can harm themselves, they can harm the precious things, they can break the phone, TV and everything. And I just want to quote some lines from the textbook. So persons with borderline personality disorder almost always appear to be state of crisis. Mood swings are common. Patients can be argumentative at one moment, depressed the next, and later complain of having no feelings. The behavior of patients with borderline personality disorder is highly unpredictable, and their achievements are rarely at the level of their abilities. The painful nature of their lives is reflected in repetitive self-destructive behaviors. Such patients may slash their wrist and perform other self-mutilations to elicit help from others, to express anger, or to numb themselves to overwhelming affect. Because they feel both dependent and hostile, they can be dependent on those with whom they are close, and when frustrated can express anger toward their intimate friends. So patients with borderline personality disorder cannot tolerate being alone, and they prefer a frantic search for companionship, no matter how unsatisfactory to their own company. They accept a stranger as a friend. They often complain about chronic feeling of emptiness and boredom and lack of consistent sense of identity. Patients with borderline personality disorder distort their relationship by considering each person to be either all good or all bad. They see persons as either nurturing attachment figures or as hateful, sadistic figures who deprive them of security needs and threaten them with abandonment whenever they feel dependent. As a result of this splitting, the good person is idealized and the bad person devalued.
shift of elegance from one person or group to another are frequent. Next, I want to talk about narcissistic personality disorder. इसके बारे में आपने सोशल मीडिया में बहुत लोगों को बात करते हुए देखा है, बट मैं टेक्स्ट बुक क्या कहती है इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा टेक्निकल जानना चाहती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली इट इज़ अ सेम टेक्स्ट बुक जो हम एमडी के टाइम पढ़ाई करते हैं जिससे, तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको कोट करना चाहती हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि व्हाट इट इज़ रियली. सो फर्स्टली they have a very grandiose sense of self importance and like वो अपने talents और achievements को बहुत ही exaggerate करके बताते हैं and they are very preoccupied with the success and the achievements and brilliance, beauty and ideal love. They mostly think about all these things and they also talk about all these things. And they believe that he or she is very special and unique and can only be understood by or should associate with other special and high status people or institutions. And fourth is they require lots of admiration. So they sometimes surround themselves with the people जो उनकी बार बार तारीफें करते रहें. I don't mean कि वो लोग कुछ अचीव नहीं करते हैं. Yes, they are achievers, but वो अपने अचीवमेंट को बहुत ही ओवर एस्टिमेट करते हैं. And they have this sense of entitlement. They have unreasonable expectation from the people, or especially favorable treatment or automatic compliance with his or her expectations. And they can be very exploitative when it comes to interpersonal relationships. They can have different image in the public. They can have different image behind the doors. So जो partners रहते हैं इन लोगों के, they can feel very damaged. And sometimes they also take advantage of others to achieve his or own needs. And they lack empathy. They don't understand emotions in other people and is unwilling to recognize or identify with the feeling and needs of others. And they are mostly very envious of others and believe that others are envious of him or her. And shows very arrogant and haughty behaviors of attitude. So there are some important key points when it comes to narcissistic personality disorder. And I just want to quote some more lines जैसे कि जिससे आप understand कर पाएं कि what it is actually. So persons with narcissistic personality disorder have a grandiose sense of self-esteem. They consider themselves very special and expect special treatment. They handle criticism very poorly and may become arranged with someone dares to criticize them, or they may appear completely indifferent to criticism. Persons with this disorder want their own way and are frequently ambitious to achieve fame and fortune. They can make other people furious by their refusal to obey conventional rules of behavior. They cannot show empathy. They can show sympathy only to achieve their own selfish needs because of their fragile self-esteem. So अब हम आते हैं हमारे वीडियो की मेन टॉपिक पे कि how to handle these people. Definitely आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसको इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो कई बार हमें इन पे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है and we started ending hating them a lot. बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लोग हैं ये खुद सफ़रर हैं, ये खुद सफ़र कर रहे हैं और मोस्टली ये जो पर्सनालिटी इनके बन गई है दे आर रूटेड फ्रॉम देयर डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड. दे कैन हैव वेरी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस इन द चाइल्डहुड, माइट बी सम ट्रॉमा एंड लॉस ऑफ वन पेरेंट और वेरी इनवैलिडेटिंग इन्वायरमेंट और कुछ भी और हो सकता है. यदि वो आपसे कोऑपरेट करते हैं, प्लीज़ सेंड देम टू अ थेरेपिस्ट. प्लीज़ ट्राई टू कन्विंस देम दे आर सफरिंग एंड उनको एक कन्विंस करें कि वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से प्रॉपर हेल्प लें. समटाइम्स थेरेपी, समटाइम्स साइकियाट्रिक कंसल्टेशन भी बहुत हेल्प करती है. सो this would be my first point. So my second point is, so mostly जो ये लोग रहते हैं जिनको ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, ये दूसरे व्यक्ति की बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा ब्रीच करते हैं और दिस इज़ वाई उनकी मेंटल वेलबींग जो है, जिनकी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही है, उनकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है. तो सेकेंड पॉइंट मेरा ये है कि
बाउंड्रीज क्रिएट करना इज़ वेरी हेल्दी, इट इज़ नॉट रूड। यदि आपको लगता है कि कोई भी कॉन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव हो रहा है या कोई भी कॉन्वर्सेशन आपकी मेंटल वेलबींग को इफेक्ट कर रहा है, यू कैन टेल दैट मैं इस बारे में अभी बात नहीं कर सकता। तो दिस इज़ वाई यू कैन क्रिएट बाउंड्री एंड लर्न दिस स्किल्स। थर्ड सॉल्यूशन जो मुझे लगता है कि जब आप एक बार सिम्टम्स आइडेंटिफाई नहीं करते हो जब तक, तो आपको कई बार जब आप क्लोज रिलेशनशिप में इन लोगों के साथ होते हो तो आप इनसे इमोशनल सपोर्ट सीख करते हो, तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। ये लोग इमोशनली सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनका खुद का इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी कम होता है और ये खुद इमोशनली खुद को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये आप ये समझें कि आप अपना इमोशनल सपोर्ट जो है वो इन लोगों में ना ढूंढें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट इट्स वेरी यूजफुल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू नीड टू डिस्टेंस दैम इमोशनली। Physical distance is not that important. Emotional distance is very important when comes with dealing with these people. So आप अपना इमोशनल एक्सपोजर कम कर सकते हैं, अपना जो टाइम अपना कॉन्वर्सेशन है वो कम मिनिमाइज कर सकते हैं और इमोशनल लोडेड कॉन्वर्सेशन इनके साथ अवॉइड कर सकते हैं। सो येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू क्लोज रिलेशनशिप जब आप इनके साथ रह रहे हैं। लाइक इट कैन बी योर पार्टनर, इट कैन बी योर पेरेंट्स, your sibling. The next point is build support system. आपने किसी टाइम पे इन लोगों को अपना सपोर्ट सिस्टम का पार्ट बनाया होगा और इमोशनल सपोर्ट आपने एक्सपेक्ट किया होगा, और जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये खुद इमोशनली बहुत डिसरेगुलेटेड लोग हैं, ये खुद अपना इमोशनल रेगुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो अपना फोकस इन सपोर्ट से हटा के ऐसे व्यक्तियों में आपको लगाना है जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर सके, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट हो इन लोगों को डील करना हो। तो आप अपना इमोशनल सपोर्ट खुद एक क्रिएट करें। दीज पीपल आर नॉट द राइट पीपल जिन पे आप इमोशनली इंक्लाइन हो सकते हो जब आप परेशान हो और इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। खुद पे काम करें, खुद का एक सर्कल बनाएं जो आपको इमोशनली हेल्प कर सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि प्रोटेक्ट योर एनर्जी विदाउट एनी गिल्ट। जो बहुत ही एम्पैथेटिक लोग होते हैं उनको बड़ा ऐसा लग सकता है कि कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करें, क्या किसी को बुरा लग सकता है क्या, एंड कैसे डिस्टेंस मेंटेन करें, जो भी पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस गिल्ट से बाहर निकलें एंड अपनी मेंटल वेलबींग प्रोटेक्ट करें, बिकॉज बर्नआउट किसी को हेल्प नहीं करता। सो माय टेक अवे मैसेज इज कि ये सब प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे हैंडल करना है, सीक प्रोफेशनल हेल्प। आप उनको भी सहमति उनको भी कन्विंस करें कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं इफ़ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। फर्स्टली यू आर नॉट अलोन, यू कैन कम टू अस। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर बार हम दूसरे व्यक्ति को ही चेंज करें, हम अपनी कोपिंग स्किल्स पे काम कर सकते हैं, अपनी मेंटल वेलबींग को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनके लिए क्या स्किल्स है उस पर काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।